India, a land of immense diversity, has given birth to numerous cultural strains and lifestyles. Indian art has gradually evolved with the evolution of our civilization. Unbroken traditions have continued for over 5,000 years. देखिए, कोई भी क्राफ्ट आप अगर देख लेंगे तो उस पर परिवार चलाना बहुत मुश्किल है इस ज़माने में। तो पहले तो चलता था, साजिश ज़िंदगी हुआ करती थी, मगर इस टाइम कोई भी क्राफ्ट हो इंडिया में या और कहीं भी, इसमें लाइफ एक चलाना बहुत मुश्किल हो रही है। ये तो नियर अबाउट पहुँचा है मरने पे। तो अगर आप देख लीजिए, अभी जो एक 20-30 साल पहले जितने इसके वर्कर थे उतने हैं नहीं आज। तकरीबन 70% उन्हें ये छोड़ दिया। 70% 10-30% बच्चे, 30% तक बच्चे वो या तो मजबूरी की वजह से कर रहे हैं या उनका कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। सर 10 साल 20 साल तो बहुत ज़्यादा है सर। 10 साल 20 साल तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ। आने वाले 5 साल में ये काम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होगा सर। मुझे 2007 और 8 में फेलोशिप मिला था, जो कि मैं तब तक 2 साल में जो भी थोड़ा सा रिसर्च किया या घूम के देखा, जो उड़ीसा में बहुत सारे क्राफ्ट्स अब तक जो कि मर गए हैं, जो मिल नहीं रहा है। जो भी बच्चे हैं अभी आगे भी शायद वो ना रहे, क्योंकि उसका भी फ्यूचर भी बहुत ही खराब होने वाला है। According to a UNESCO report of 2007, there are about 1.69 million artisans working in various forms of utilitarian and creative arts in India. For centuries, Indian handicrafts have been distinguished for their aesthetic and functional value. Only because of our talented artisans who have followed their forefathers into the field of color. Though Indian handicrafts have an amazingly captivating beauty and diversity, the fate of our artisans does not reflect the beauty that they create. They live in anonymity, often in penury. So, we have heard of one full length of cloth or going through a ring. We have heard of it, but we have it even today, but nobody is to save them. So when they are committing suicide, why? Because they don't have sufficient incomes, and when they don't have market, so what to do? Either they leave their profession, and I was very much pained to know that traditional artisans in Andhra Pradesh, weavers, they are joining the workforce as casual labor. Because of insufficient markets and tourist-dependent seasonal work, people like Prajapati and Liaquat are now looking to work regular wage jobs for survival. From the Indus Valley period, Indian art has amazed the world. Still, today there is not one umbrella at national level to integrate artisans all over the country in a network of marketing. As a first step, we need a data bank of artisans engaged in different arts and crafts, and then join them together on a common platform. Otherwise, the possibility of the art dying a premature death is quite alive. हमारे नई पीढ़ी नहीं आ रही, इसलिए कि हमारे हालात जो हैं उनके सामने हैं। वो कहते हैं साफ साफ कि पापा हम आपको देख रहे हैं, आपके कितने अच्छे हालात हैं, हम इसमें कला हम ये नहीं सीखेंगे, हम कुछ और ही करेंगे। Artisans create on expensive materials like ivory, gems, and marble to cheaper ones like clay, cane, bamboo, and wood. Yet their lives are far from any semblance of luxury or even comfort. Their children are opting for the cities, leaving the established profession of their forefathers. Are we not responsible for completely ignoring our artisans? Just like music gharanas are made after generations of practice and following, shouldn't we treat and respect, preserve and conserve artisan gharanas? ऐसा काम है कि 25-30% लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, रोटी रोजी अपने कमा सकते हैं,
बड़ी अच्छी तरीके से कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं सब कुछ। क्या वजह है कि वो लोग कहते हैं कि अब हम ये काम नहीं करेंगे? क्या वजह है कि मेरा बच्चा जिसके पापा ने अनपढ़ होकर 15 घंटे या 20 घंटे देखे, वो कहते नहीं पापा मैं एयरटेल में जाऊंगा, मुझे वो 3000 रुपये देंगे, 4 घंटे में वापस आऊँगा। क्या बात है? देखिए, अगर हम परंपरा कहेंगे एक ब्लड में होता है, एक नशा होता है, चाहे कुछ भी कहे, करना तो काम ही है उनको, क्योंकि वो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा ये काम जो है रुक जाएगा। बट अगर हम दूसरे घर वालों को लाना चाहते थे, वो हमसे हो नहीं रहा है। अब जिस घर में है उसमें शायद वो बुजुर्ग बच्चे फिर कर ही लेते हैं शायद, पता नहीं उनकी मर्जी है कि नहीं, शायद हम ये भी कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। This is a matter of concern for the entire nation. A country where 1.5 million people live, even if a small percentage starts loving and preserving art, we would be doing a lot of good, not just for our future generations, but also for people like Shabir, who are struggling to keep their children in their traditional kala. Father of our nation, Mahatma Gandhi, said, "A country remains poor in wealth, both materially and intellectually, if it does not develop its handicrafts." हम अपने उत्पादों को जो हैं वो अपने देश में कम से कम यह निश्चित करें कि हम जो बाहरी उत्पाद हैं, जो दूसरे देश के उत्पाद हैं, जो हमारे समाज में अब प्रतिष्ठित हो रहा है, और हम भी प्रतिष्ठा का अनुभव करते हैं कि मेड इन अमेरिका अगर सामान खरीद रहे हैं और मेड इन इंडिया का सामान बहुत ही उत्तम है, उसके बावजूद भी हम खरीदने में थोड़ा हीन भावना से अपने मन में आता है। इसको दूर करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आज आवश्यकता है कि हम अपने उत्पादों को स्वयं उपयोग करें और बाहरी उत्पादों के प्रति हम ललचाई नज़रों से न देखें। India is a big market where the world is looking to sell their products. With the influx of MNCs in India, there is a huge amount of competition where handicrafts are struggling to survive with machine-made products on the other side. अगर एक शॉल पे आप भी मुझे क्वेश्चन करोगे कितने लोगों की रोटी रोजी चलता है, आप भी थक जाओगे सर। तो मुझे नहीं लगता कि शायद 50 से पहले हम एंड करेंगे एक रोटी रोजी शाल पे। वो आप बोलोगे कैसे? एक रुआ लाता है जो उसको काट के लद्दाख से लाता है, आपको देता है, आप उस रुए को हमको देते हैं, वो दुकानदार उसको हम पुईवानी बोलते हैं, उससे औरतें खरीदते हैं, औरतें खरीद कर उसके बाद उसको वापस पुईवाने को करते हैं। पुईवाने फिर साद वाली को, तो साद वाला मैंने होता है जो ओवन बनाता है, वो फिर देते हैं पुरुष घर को, उसमें छोटे छोटे दाने उठाते हैं। इसमें कितने लोग आते हैं, जो लूम बनाने वाला, जो इंद्र बनाने वाला, तो हमें वहाँ जाना ही नहीं है, क्योंकि मशीनों का इतना हमला है इस कारीगर के ऊपर कि वो अब धीरे धीरे मतलब ख़त्म होता जा रहा है। हमारे अजीब इत्तेफाक है, हमारे देश में हमारा चाइना का सामान बिक रहा है जो हमारे हर कंट्री का नाम से बिक रहा है। पता नहीं वो चाइना अगर यहाँ पर बिक रहा है तो हमारी गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं देख रही है, जबकि ये हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि वो उसके घर के मेंबर को, अपने बच्चे का रोटी रोजी छीन रहे हैं। Intricacy and detail are the hallmark of Indian art. They are matchless in beauty and range. The very same detail and range is required to take care of the vast number of artisans whose hands create in awesome style. We do not have to give them anything save empower them to be known and to be connected to the world. Their art shall weave the rest of the magic. हम लोग को बाजार मिल नहीं रहा है। यदि बाजार मिलता, मेरा सेलिंग होता, 2 पैसा कम में मिलता, बाकी बाजार मिलता तो हम लोग और बनाते। मेरा बहुत महिला बेरोजगार बैठा हुआ है, बच्चे लोग पढ़ लिख नहीं रहा है, गरीबी है, बिहार है, बारिश नहीं होता है, इतना भरण पोषण हो नहीं पाता है, तो इसका बाजार ही नहीं मिलता है तो हम बनाए क्या? तभी थोड़ा थोड़ा अपना घर परिवार है ना, वो अपना बनाते हैं, अपना बना के रखते हैं। कभी कभी उनके बाबू दादा कहे किसी से मदद लेते हैं तो कोई भैया ने मदद दे देते हैं तो हम चले आते हैं। कोई जो भी क्राफ्ट्समैन है उसको एक सेल करने के लिए कुछ देना चाहिए, कुछ मार्केट देना चाहिए जिसमें ये सेल करके कुछ कमा सके, बिचौलिया न हो बीच में, तो तब जाके इसकी शबीर सुधर सकती है और मे बी न्यू जनरेशन में ये जा सकता है ये आर्ट। कभी एग्जीबिशन में जाते हैं, कभी बाहर बेंगलोर वगैरह, तो 2 दिन 5 दिन का एग्जीबिशन होता है, लेकिन उसके अलावा फिर घर जाके फिर हम बैठ जाते हैं। India's rural arts are the visual expression and technological processes of people living at several cultural, religious and sociological levels. They are the art of settled village and countryside, of people whose lives are tuned to the rhythm and laws of nature. The art villages deserve to be joined on a co-sharing platform, exchanging views, raw material availability, customer demand
and most importantly, get a fair price for their art. उस मीडिया में जहाँ 400 से भी ज़्यादा चैनल हैं, एक चैनल तो रखिए जहाँ पर आप ये बताइए उनको ये शॉल कैसे बनता है, ये मधुबनी पेंटिंग कैसी बनती है, ये हैंडमेड पेपर क्या है, वो मूर्ति कैसे बनती है, वो राजस्थान का ये क्या है, ये चीज़ क्या है। उसका रीज़न ये है कि 400 भी ज़्यादा चैनल हैं सर। अजीब इत्तेफाक है कि एक चैनल भी क्राफ्ट पे नहीं है। अगर एक चैनल क्राफ्ट पे होते तो आज मेरा बच्चे को पता चलता मेरा पापा कौन शॉल बना रहा है। जब मेरे घर में मेरे बच्चे को नहीं पता मेरा पापा कौन शॉल बना रहा है, मरीनो वूल किसको कहते हैं, रफल किसको कहते हैं, पश्मीना किसको कहते हैं, आजकल 120 काउंट किसको कहते हैं, तानी किसको कहते हैं, ये सारा वूल का नाम है। तो मैं दूसरों को क्या पूछूं? उसको अगर आज मैं बताता हूँ वो बर्ड्स क्या है, वो बोलेगा ये बर्ड्स जो है ना पापा ये खाता है, ये पीता है, ये करता है, इस तरीके से सोता है, इस तरीके से इससे तकलीफ होता है, इससे आराम होता है। बट एक क्राफ्ट्समैन का कोई किसी जगह दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। One can feel the vibrancy of Indian ethnicity come alive in the various products carefully crafted by the artisans. The diversity is overwhelming. Then why should they feel dejected and on their own? Their expertise can be marketed in the world on the internet highway, and they can be given a chance to improve their own lifestyle to realize the fruits of their creativity. That is the issue, that is the concern, and that is the focus of Kalalok. ये जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन करके वेबसाइट ऐसी क्रिएट होगी जिसमें विजुअल डॉक्यूमेंटेशन होगा, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन होगा, उनसे क्वेश्चन सवाल पूछे जाएंगे, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इसमें कितना टाइम लगता है, वो ऑल दोज थिंग्स। जैसे वो प्रिजर्व होता रहे, एक डॉक्यूमेंटेशन होता रहे कि ये XYZ गोंद आर्ट है जो मध्य प्रदेश का है और वो ऐसे बनता है, इन कलर्स को यूज़ किया जाता है, ये ब्रशेस होते हैं। दिस इज़ द वे टू प्रिजर्व। सेकेंड वे टू सेल, सिर्फ कमर्शियली सेल होने के साथ साथ सिर्फ हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं, उनको भी फेयर प्राइस दे रहे हैं और लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि इसमें बहुत मेहनत लग रही है, तो आप इसके लिए इतना प्राइस है, बिकॉज देयर इज़ नो वे टू बार्गेन ऑन अ वेबसाइट। नहीं, ये बहुत स्वागत योग्य पहल है और मैंने तो पिछली आपको चर्चा में बताया भी कि आज जो वैज्ञानिक और जो तकनीक उपलब्ध हैं उस तकनीक का पूरा लाभ हमारे आर्टिज़न को मिलना चाहिए ताकि अपने उत्पाद को बाज़ार के समक्ष, लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सके और ये भी बता सके कि हमारे जो उत्पाद हैं वह सर्वोत्तम हैं, न कि वो चीन और दूसरे जगहों से आने वाले उत्पाद। हमारे चीज़ों का कि क्वालिटी भी बेहतर है, उनमें अस्थायित्व भी है और ज़्यादा दिन तक हम टिक भी सकते हैं, रह भी सकते, टिकाऊपन भी है और ये सारी बातें हैं। इन सब बातों को लेकर के शिवानी जी का जो प्रयास है वो स्वागत योग्य है। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब लोगों को शिवानी जी के साथ खड़ा होना चाहिए और जो कुछ भी संभव हो हम लोगों को अपनी क्षमता भर इनकी मदद करनी चाहिए। The Sanskrit word kala means divine attributes, which from everyday life reflects a worldview. Lok in the Veda did not simply mean place or world, but had a positive valuation. It was a place or position of religious or psychological interest with a special value or function of its own. Kalalok.com is an endeavor to preserve the rich cultural heritage of our country by promoting the many rural artisans and giving them a fair price model of e-commerce. पापा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि 1.5 अरब की आबादी है, 1/20 समझ लीजिए, 1/20 बहुत होते हैं। 1/20 में अगर 20 ही चाहे कि वो इस हैंडीक्राफ्ट को लव करे, 20 करोड़ लोग ये चाहे कि हम साल में या किसी भी फेस्टिवल पे एक हैंडक्राफ्ट का चीज़ लेंगे, एक हैंडीक्राफ्ट का चीज़, दिवाली हो, ईद हो, कि जो भी फेस्टिवल एक हम लेंगे। हम उनको ये भी नहीं कहेंगे कि शबीर का शाल 2 लाख का है वो ले लीजिए, नहीं, शबीर का शाल 200 का भी है, जिसमें वो गाँव की औरतें जो काम सीखना शुरू करते हैं, उस पर काम करते हैं, उसको हम बेलदार कहते हैं, वो हम रफल पे करते हैं। वो स्टार्टिंग 500 रुपया है, कोई मसला नहीं है, सर्दी भी है, वो ले लीजिए। वो लेकर आप देखिए उसको कांधे पे कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि उसको रोटी रोज़ी मिलेगा जो वो बनाता है।